Before we take part in the Lord's table, let us read a portion from God's word, meditate, examine ourselves, then take part in it. खुदा की मेज में हाथ डालने से पहले चले हम खुदा का कलाम में से एक हिस्सा पढ़ेंगे, उसका मुताला करेंगे और उसके बाद हमारी जिंदगियां परख के उस मेज में हाथ डालेंगे। Yeah, kindly turn with me to book of James chapter 2. मेहरबानी करके मेरे साथ आप याकूब की किताब देखें और बाब नंबर 2। We read from verse 21 to 26 responsively. 21 से लेकर 26 तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया और अमाल से ईमान कामिल हुआ। And the scripture was fulfilled, which said, Abraham believed God, it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। And ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only. इसी तरह राहाब फाहिशा भी जब उसने कासिदों को अपने घर में उतारा और दूसरी राह से रुखसत किया तो क्या अमाल से रास्तबाज ना ठहरी? For as the body without the spirit is dead, so faith without works is also dead. Shall we pray? दुआ करेंगे। All-being, loving Father, most gracious and merciful God, thank you for the blessed time granted around thy feet, worshipping thee. Thank you for the privilege granted, Lord, in our lives to come to your house and come around the table. Thank you for the sacraments on the table, reminding us the great sacrifice Christ has made for our sins on the cross of Calvary. So much of love that you have shown towards us, willing to allow the body to be broken and blood to be shed. Before, Lord, we take part in the table, Lord, with all fear and reverence, we approach the word, minister the word unto us, so that we may correct ourselves and we may go towards maturity, and thus we become the friend of God. Help us in meditating the word. May the Holy Spirit help us. In Jesus' precious name we pray. आमीन। So, now we are going to meditate about Abraham's faith. अब हम अब्राहम में जो ईमान था उस ईमान के बारे में मुताला करने वाले हैं। Yeah, he believed in when God called him. He obeyed not knowing whither he went. अब्राहम ने ईमान लाया जब खुदा ने उसे बुलाया था तो बगैर जाने के कहाँ जाना है उसने उस खुदा पर ईमान लाया था। Yeah, when we read Genesis chapter 12. जब हम पैदाइश की किताब बाब नंबर 12 पढ़ते हैं। Yeah, God called Abraham out of his country, out of his kindred, out of his father's house. वहां पे हम देखते हैं कि खुदा ने अब्राहम को उसके वतन और नातेदारों से और उसके बाप के घराने से निकल कर आने के लिए बुलाया था। Yeah, Abraham obeyed, not knowing whither he went, he followed God. और अब्राहम ने फरमाबरदारी दिखाई और जहां जाना है उसे बताया नहीं गया था लेकिन निकला था। That is a very wonderful separation in the life of Abraham. इस तरीके से अब्राहम की जिंदगी में एक बहुत अजीब बल्कि बहुत खास बदलाव हम देखते हैं वो निकलता है। He didn't ask anything, which place you are going to take me, what you will do. All never asked all these things. He simply obeyed and followed God. उसने खुदा से कुछ भी सवाल नहीं किया था, तू मुझे कहाँ ले जाएगा, किस जगह में मुझे ले जाके रखेगा, किसी भी चीज को उसने खुदा से नहीं पूछा बल्कि फरमा बरदारी दिखाई। Yeah. So chapter 11 Hebrews verse 8. इसीलिए इब्रानियों की किताब 11 की 8 में पढ़ते हैं। Yeah. By faith Abraham, and he was called to go into a place which he should have to receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मीरास में लेने वाला था। Yeah. So God has blessed Abraham. अब्राहम को खुदा ने मुबारक बना दिया। And God has blessed him with Isaac. और उसके बाद इसहाक बच्चा पैदा होने से उस बच्चे के जरिए से भी खुदा ने उसे बरकत दी। Yeah, now God asked his only one son, Isaac,
to be sacrificed on one of the mountains in Moriah. अब खुदा कहता है कि अब्राहम से कि तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को ले जा और जहां मैं तुझे दिखाऊंगा उन पहाड़ों की एक चोटी पर, मतलब मोरिया की चोटी पर उसे कुर्बान कर। He didn't ask any question there also. वहां भी अब्राहम खुदा से किसी भी तरह का सवाल नहीं पूछता है। He has grown so much that all these 25 years, so much of faith he has built. उसके अंदर इतने सालों में 25 सालों में खुदा के साथ रहते हुए मजबूत ईमान बन गया था। He want to obey God. वो उसने चाहा था कि मैं खुदा के सामने फरमाबरदारी दिखाऊं। His faith was so deep in him that in my old age God is able to give him the son. Definitely he will raise him even he is dead. उसका ईमान इतना जोर पकड़ा था कि उसने सोचा जब मैं बूढ़ा हो गया, इस बुढ़ापे में जब खुदा मुझे बेटा बख्श सकता है तो मुझे मेरे बेटे को मुर्दों में से भी फिर जिंदा करके खुदा दे सकता है। Yeah, so Abraham believed in resurrection. तो इस तरीके से अब्राहम ने मुर्दों में से जी उठने की बात जो है उस पर भी ईमान लाया था। Yeah, Hebrew 11 verse 19. इब्रानी की किताब 11 की 19। According that God was able to raise him up even from the dead, for when he received him in a figure. क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है, चुनांचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। Yeah, now come to James chapter 2. अब फिर वापस आएंगे याकूब की किताब बाब नंबर 2 verse 21. और 21वीं आयत। Yeah, was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? जब हमारे बाप अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानगाह पर कुर्बान किया तो क्या वो अमाल से रास्तबाज ना ठहरा? Seest thou that faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया और अमाल से ईमान कामिल हुआ। Yeah, note this point here. And by works was faith made perfect. यहाँ पे इस जुमले पे आप जरा गौर फरमाए, अमाल से ईमान कामिल हुआ। Yeah, our faith must be accomplished with works. तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि हमारे ईमान के साथ अमाल भी शामिल रहने हैं। Then only we come to the expectation of God. Then we will be called as the friend of God. तभी हम खुदा की उम्मीद तक हम पहुंच सकते हैं और खुदा के दोस्त भी हम बन सकते हैं। Yeah, verse 23. 23वीं आयत। And the scripture was fulfilled, which said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. और ये नविश्ता पूरा हुआ, अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। Yeah, so after our salvation, our growth in the Lord must be increasing by faith and accompanied by works. तो नजात पाने के बाद, नजात याफ्ता होने के बाद हमारा ईमान खुदा में बढ़ते बढ़ते जाना है और उनके साथ अमाल भी शामिल रहने हैं। Yeah, so come to the works. Many times we fail. अगर हम अमाल के बारे में बात करें तो बहुत सारी बार हम कम पड़ जाते हैं। Yeah, when God asked Abraham to sacrifice his son, he obeyed. And he has accomplished through the works. He is able to raise him even from dead. जब खुदा ने अब्राहम से कहा कि तेरे इकलौते बेटे को मेरे वास्ते कुर्बान कर, तब उसने अमाल चाहा और अब्राहम ने उस पर अमल किया देखा ऐसा हुआ कि गोया मुर्दों में से इसहाक को वापस पा लिया। Yeah, in the book of John's Gospel, chapter 15. अगर हम देखते हैं यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 15। Yeah, here our Lord Jesus Christ upon this earth during his earthly ministry. यहाँ पे हमारे खुदावंद यीशु इस जमीनी दौर पर जब थे, he called his disciples as friends. उन्होंने अपने शागिर्दों को दोस्त कहा था। Yeah, Jesus Christ called his disciples when they were in diverse occupation. हमारे खुदावंद ने अपने शागिर्दों को मुख्तलिफ पेशों में से बुलाया था। Yeah.
They immediately obeyed and followed God. और उन्होंने यकाएक खुदावंद यीशुआ की उनकी बात मानकर उनकी पैरवी करने के लिए आ गए। Yeah, ever since they came to him, they did not go back. जब से वो लोग खुदावंद यीशुआ की पैरवी करने के लिए आए थे, उस वक्त से लेकर कभी भी वो लोग पीछे ना हटे। So the Lord, he says in chapter 15 verse 14, इसीलिए खुदावंद यीशुआ यूहन्ना की खुशखबरी 15 की 14 में कहते हैं, "Ye are my friends if you do whatsoever I command you." जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। Yeah. So whatsoever he command, if we do follow, we will become the friend of God. तो इस तरीके से जो कुछ वो हमसे कहता है अगर वो हम करते जाएंगे तो हम उसके दोस्त बन जाएंगे। Yeah. In verse 15 he says, 15वीं आयत में वो कहता है, "Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I called you as friends. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you." अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। Yeah, I have called you as friends because that I have made known all things unto you. खुदावंद यीशुआ कहते हैं, मैंने तुम लोगों को मेरे दोस्त बनाया या दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको भी बता दी। Yeah, so many things the Lord told to his disciples about the heavenly kingdom, is a Father's house, many mansions and great blessings. बहुत सारी बातें खुदावंद यीशुआ ने अपने शागिर्दों से की थी और उन्होंने कहा था आसमानी बादशाहत के बारे में, बाप के घर के बारे में, वहां बहुत सारे मकाम हैं और आसमानी बरकतों के बारे में सब कुछ उन्होंने बताई। Yeah, in the 14th chapter he says, और आयत बाब नंबर 14 में वो कहते हैं, and he says in my verse 2, "In my Father's house there are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go prepare a place for you." दूसरी आयत, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। Yeah, when Jesus was speaking about his death, burial and resurrection, disciples were not happy and they said, "Lord, this thing should not happen unto you." जब खुदावंद यीशुआ ने अपने बारे में मैं मरूंगा, कब्र में रहूंगा और उसके बाद जी उठूंगा, ये बातें खुदावंद यीशुआ ने जब कहा तो वो शागिर्द लोग बहुत गमज़दा हुए और कहने लगे कि खुदावंद ऐसी बातें आपसे दूर रहें, Because they physically they did not want Jesus to go away from them. क्योंकि जिस्मानी तरीके से उन लोगों का ख्याल ऐसा था कि वो लोग ना चाहते थे कि खुदावंद यीशुआ जिस्मानी तरीके से उनसे दूर हों। Because they saw his beauty and glory and Mount Transfiguration and his words of grace and peace and his active works and mighty acts. They wanted the Lord to be with them always. क्योंकि उन्होंने उनकी खुशनुदी देखी थी और उसके पास जो इत्मीनान है, उसकी कुदरत है और उसका जलाल जो है, वो सब चीजें उन्होंने देखी और इसलिए वो लोग ना चाहते थे कि खुदावंद उनसे जुदा हों। If suppose we have a good person in our home for some time as a guest, he came and he said, "I go home, I go to my place." We don't allow him to go. We stay here for some time. मसलन आप ऐसा तस्वुर कीजिए कि कोई एक अच्छा इंसान, एक बंदा हमारे घर में हमारे साथ कुछ दिन या कुछ अरसे तक शामिल रहते हैं और उसके बाद वो कहने लगता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, वहां मैं फिर से चले जाने वाला हूँ, तो हम दिलसोज हो जाते हैं और चाहते नहीं कि वो हमसे बिछड़े, Because the attachment is developed. क्योंकि उनसे हम रिफाकत में जुड़ गए। They have come into a bond, togetherness. हाँ, ये एकता जो है उसमें हम रिफाकत में जुड़ गए। That's what the Lord said. "I go prepare a place, I will come again." इसीलिए खुदावंद यीशुआ ने जब ये कहा कि मैं जाता हूं और आप लोगों के लिए आसमान में मकान तैयार करके मैं फिर वो आऊंगा। Verse 3. आयत नंबर 3, If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am and ye also may be. और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। Oh, what a wonderful assurance the Lord gave to them. ये कितना ही बहुत बड़ी उम्मीद है ना जो खुदावंद यीशुआ ने उन शागिर्दों को दी थी।
to be with me forever. मेरे साथ हमेशा के लिए तुम लोग रहोगे. Yeah, so these friends, those who have obey his commandments, waiting and have an attachment with him, and for them he is going to come. और खुदावंद यीशु आने वाले हैं किनके लिए? उनके लिए जो उनके दोस्त हैं और खुदावंद यीशु के साथ रिफाकत में जुड़े हैं और उनसे दोस्ती रखते उनके साथ चलते हैं, उनके लिए खुदावंद यीशु आने वाले हैं. Yeah, now we have become children of God. अब हम खुदा के दोस्त बन चुके हैं. Yeah, by the precious blood of Lord Jesus Christ, you are purchased. खुदावंद यीशु की बेशकीमत खून से हम खरीदे गए हैं. Yeah, according to John's Gospel, chapter 1, verse 12, you have become children of God. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1 और आयत नंबर 12 के मुताबिक हम खुदा के बच्चे बन चुके हैं. Yeah, he said, and verse 12, I read for you, as many as received to them, he gave power to become the sons of God, even and them that believe on his name. 12वीं आयत, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं. Yeah, now we come to the stage of having friendship with our Lord. अब हम इस कद्र तक पहुंचे हैं कि हम हमारे खुदावन से दोस्ती में कायम हैं. Yeah, then heavenly things will be revealed to us. और उस वक्त तक पहुंचने के बाद आसमानी बातें हमारे सामने जाहिर की जाएंगी. Desire, longing will be increased towards eternal heaven. और हमारी चाहत और हमारा आरजू जो है वो भी बढ़ते बढ़ते आसमान में पहुंचने के लिए वो बढ़ते जाएगा. Yeah, look at Abraham. अब्राहम को अगर देखें, Yeah, he was looking for the city whose builder and maker is God. वो उस आसमानी शहर का मुंतजिर रहा जिसका तामीर करने वाला खुदा था. So that attachment he made with God. इस तरीके से खुदा से उस रिफाकत में वो जुड़ गया था. Genesis 13, we are told verses 2, and he 1 and 2, he was a very rich man. Abraham was a rich man. और हम पैदाइश की किताब 13वां बाब और पहली 2 आयतों में पढ़ते हैं कि अब्राहम बहुत अमीर शख्स था. Not happy with what all he had upon this earth. इस जमीन पर उसको जो कुछ उसके पास मालो अज़बाब थे उनसे अब्राहम खुश नहीं हुआ. Yeah, he looked for that city. उसने आसमानी शहर का मुंतजिर वो बन गया. 11 to 10 Hebrews, इब्रानी की किताब 11 की 10, 9 and 10. 9 और 10. For by faith he sojourned in the land of promise, that in the strange country, dwelling in tabernacles with Isaac, Jacob, and the heirs of him with the same promise. For he looked for a city which has the foundations, whose builder and maker is God. ईमान ही से उसने मुल्क मऊद में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बुदबाश की कि गोया गैर मुल्क है और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादे के वारिस थे खैमों में सुकूनत की. He was a rich man and he thought he would have built very big palaces. वो बहुत अमीर इंसान था, अगर वो चाहता तो बहुत बड़े बड़े मकान बना लेता. But he lived in tabernacles. लेकिन लिखा है कि वो खैमों में सुकूनत करता था. At the disposal of the Lord. और हमेशा खुदा के लिए दस्तयाब रहता था. Anytime he asks me to move, I will ready to move. क्योंकि जब भी खुदा कहेगा कि तू निकल तो वहां से निकलना पड़ेगा उसे. His eyes were always set up that city which as a builder and maker is God as foundation. उसकी आंखें हमेशा ऊपर ऊपर ही रहीं और उस शहर पर रहीं जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है. That's what he has become the friend of God. इसीलिए वो खुदा का दोस्त बना. It's not easy. वो इतना आसान नहीं था. To become a friend of God, we have to do many sacrifices. खुदा के दोस्त बनने के लिए हमें तो बहुत कुर्बानियां करनी पड़ेंगी. But easily we make friendship with this world. लेकिन इस दुनिया से तो बहुत आसानी से हम दोस्ती कर सकते हैं. We see things on this earth and we make friendship with this world. इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं और उनसे उन लोगों से भी हम आसानी से दोस्ती कायम कर सकते हैं. Having friendship with this world is an enmity against God. लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि इस
दुनिया से मोहब्बत रखना या दोस्ती कायम करना खुदा से अदावत का बराबर है। Yeah, book of James chapter 4 हम ये बातें याकूब की किताब बाब नंबर 4 में पढ़ते and हैं verse 4. और आयत नंबर 4। Yeah, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. ऐ जिना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। Yeah, before take part in the Lord's table, let us examine ourselves. Whose friend we are? खुदा- Are we the friend of Christ, our Lord, who gave himself for us, or the friend of this world? खुदा की इस पाक मेज में हाथ डालने से पहले हम जरा अपने आप को जांचें और परखें कि हम किसके दोस्त हैं। क्या हम खुदावंद यीशुआ के दोस्त हैं या इस दुनिया के दोस्त बन चुके हैं? Yeah, you suppose you have a friend, मसलन आपका एक शायद दोस्त है, you spend more time with him. उसके साथ आप ज्यादा वक्त बिताते रहते ना, You will discuss so many things. बहुत सारी बातें उससे आप बात करते रहते ना, Oh, so eager to go and visit him. और जाकर उसके साथ बैठकर बात करने के लिए आप तड़पते हैं ना। Perhaps you don't share with your siblings or parents, but you will share with your friends. शायद आपके भाई बहनों से भी शायद आपको ये बातें कुछ बातें बयान नहीं करते और वालिदैन से भी आप बयान नहीं करते, लेकिन दोस्तों के सामने बयान करते हैं, Pour out your heart to your friend. क्योंकि आप अपने दिल अपने दोस्तों के सामने आप उंडेल देते हैं। Yeah, that intimacy we must develop with our Lord. इस तरह की इंटीमेसी जो है, गहरा रिश्ता जो है खुदावंद यीशुआ से हमें कायम करना है। Yeah, go to him as often as possible. इसीलिए हर बार जितना मुमकिन हो सके उतनी बार खुदावंद यीशुआ के पास जाते रहें Seek his presence. और उसकी मौजूदगी के तालिब रहें, Yeah, in his presence, fullness of joy. At his right hand, there are pleasures for evermore. क्योंकि उसकी हुजूरी में, उसकी मौजूदगी में खुशी, तमाम खुशियां हैं, Wonderful things. बहुत अच्छी बातें हैं। 16:11 Psalm. मज़ामिर की किताब 16:11। When you go to our friend Lord Jesus Christ, जब हम हमारे दोस्त खुदावंद यीशुआ के पास जाते हैं, yeah, fullness of joy. वहां पे क्या है? वहां पे कामिल शादमानी है। Yeah, they exercise to go and sit at his feet and admire. Oh, you will be thrilling with that joy. जब आप खुदावंद यीशुआ के पास जाएंगे, उसके कदमों के पास बैठेंगे और खुदावंद में शादमान होने लगेंगे, तब आप खुशी से भर जाएंगे और कामिल शादमानी में आप डूब जाएंगे। If you want to become a friend of God, अगर आप खुदा के दोस्त बनना चाहते you हैं must go to him. तो आपको खुदावंद यीशुआ के पास जाना पड़ेगा। You must listen to him. खुदावंद यीशुआ की बातें सुननी पड़ेंगी। You must obey whatsoever he says. जो भी खुदावंद यीशुआ कहते हैं उनकी बातों के फरमाबरदार होना पड़ेगा। Yeah, though we are many years of Christian life, we could not make any friendship with him. हमारी यीशुई जिंदगी में बहुत सारे साल बीत गए, लेकिन खुदावंद यीशुआ से शायद हम दोस्ती अब तक कायम नहीं कर पाए। We have not received anything heavenly, spiritual things from our Lord. हमारे खुदावंद यीशुआ से आसमानी और रूहानी बातें, चीजें हमने शायद अभी तक पाए नहीं। He is ready to reveal what is his father's house. खुदावंद यीशुआ तो चाहते हैं कि जाहिर करें हम पर कि उनके आसमानी बादशाहत में या बाप के घर में क्या क्या चीजें हैं। Yeah, when we receive from him, we can share it with others. जब हम खुदावंद यीशुआ से पाते हैं तभी तो हम दूसरों को वो दे सकते हैं ना। That's what many people, though they are believers many years, but they don't have anything to share with others and tell about Christ living for themselves. लेकिन गम की बात यह है कि बहुत सारे सालों से यीशुई करके अपने आप को दुनिया के सामने बताकर जीने के बावजूद भी खुदावंद यीशुआ से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं बहुत सारे लोग, और दूसरों को कुछ भी बता नहीं पाते हैं खुदावंद यीशुआ के बारे में। With whom you spend more time? आप किसके साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं? Is it with the Lord or in the world? खुदावंद यीशुआ के साथ बिताते हैं या दुनिया में? Sometimes people, they clutch their cell phone, mobile, watching and speaking so much of time. बहुत सारी बार लोग क्या करते हैं, अपने हाथों में वो सेलफोन पकड़ लेते हैं और उसमें बहुत वक्त जाया करते हैं। Less time to the Lord, more time to the mobile. खुदावंद के लिए कम वक्त और मोबाइल में ज्यादा वक्त बिताते हैं। They will scroll
WhatsApp. व्हाट्सएप करके है ना एक चीज, उसको स्क्रॉल करते जाते हैं। I tell, मैं बोलते रहता हूँ, what's up? हाँ, ऊपर देखो, Oh, what's up? ऊपर देखो, That's very important. ये बहुत अहम है। Tell everybody, don't go for WhatsApp and go for WhatsApp. हाँ, इसीलिए आप भी सबों के बताते जाएं कि व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप मतलब ऊपर क्या है वो ढूंढना। Oh, that's very important. हाँ, वो बहुत अहम है। Abraham was scrolling WhatsApp. अब्राहम स्क्रॉल करता था कि व्हाट्सएप क्या है, ऊपर क्या है। That's why he became the friend of God. इसीलिए वो खुदा का दोस्त बन गया। But we are friend of the world. लेकिन गम की बात यह है कि हम दुनिया के दोस्त बन चुके हैं। We are very much anxious to know what's happening in Iran. Oh, what's happening in USA? What's going to happen to India? Oh, so many things anxious. हम बहुत दिलचस्पी उन बातों पे दिखाते हैं कि ईरान को क्या हो रहा, अमेरिका को क्या हो रहा, भारत में क्या हो रहा, दुनिया में क्या हो रहा। Will I get my gas tomorrow? हाँ, कल के दिन मेरा गैस मुझे मिलेगा कि नहीं। Oh, petrol will be available? क्या कल के दिन पेट्रोल मुझे मिलेगा नहीं। Oh, so many questions. बहुत सारे सवाल हैं दिल में। You are looking here down. आप यहाँ यहीं पे जमीन पर नजर डाल रहे हैं। You are like Lot. आप किसकी तरह हैं? आप लोत की तरह हैं। Looking, all these things. लोत ने क्या किया था? सिर्फ और सिर्फ अपने आजू बाजू के जमीनी चीजों पर नजर डाला था उसने। Now look up. आप क्या करना? ऊपर देखना। Then you will become the friend of God. तभी ही आप खुदा के दोस्त बनेंगे। When you become the friend of God, जब आप खुदा के दोस्त बनेंगे, and we will be rejoicing. हम क्या करेंगे? हम खुशी मनाने लगेंगे। Our attachment to this world will be diminishing. और हमारी चाहत जो इस जमीनी चीजों पर रहती है, वो चाहत घटती जाएगी। We live a life of purpose on this earth. तब क्या होगा? इस जमीन पर हम एक मकसद की जिंदगी जीने वाले बनेंगे। Those who those who love this world, they are the enemies of God. लेकिन जितने भी लोग इस दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, वो खुदा से अदावत रखने वाले खुदा के दुश्मन बनते हैं। That's what James he uses very hard word here. इसीलिए याकूब की किताब में बहुत संगीन सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। 4:4. 4:4 Adulteresses, knowing not the friendship of the world is enmity with God. ऐ जिना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। Very severe, very hard word. यहाँ पे बहुत सख्त और संगीन अल्फाज में ये बयान किया गया है। Look at how that we have to diminish our friendship with this world. तो यहाँ गौर फरमाए कि हमें इस दुनिया से हमारी मोहब्बत जो है उसे कितना कम करना, घटाना है। जरा सोचें। Love not the world, दुनिया, things therein. हाँ, बस जो भी दुनिया में है, उस दुनिया की चीजों पर मोहब्बत मत रखना। Only look unto God. सिर्फ और सिर्फ खुदा को ताकते रहना। He has a plan for us. खुदा के दिल में हमारे वास्ते एक मंसूबा है। That's what he has chosen us. इसी बात से उसने हमें चुना है। Go to him, Lord, you have saved me, you have forgiven my sins. What's your plan in my life? हाँ, और इसीलिए खुदा के पास जाना और खुदा से कहना, ऐ खुदा आपने मुझे चुना, नजात भी आपने दी है, लेकिन मेरी जिंदगी में आपका मकसद क्या है? Then the Lord will reveal day by day, slowly and steadily in our lives what we ought to do. अब खुदा क्या करेगा? दिन ब दिन धीरे धीरे हमें बताते जाएगा, हमें जाहिर करते जाएगा कि हमें क्या क्या करने हैं। And what way that we can please him. और जिस तरीके से, जिस राह में हम उसके लिए पसंदीदा इंसान बन सकते हैं, वो हमें बताएगा, सिखाएगा। How the friends want to please each other. हाँ, इस तरीके से एक दोस्त लोग एक दूसरे से जैसे एक दूसरे को पसंद आना चाहते हैं, उसी तरीके से खुदा के साथ हमें रहना है। If I have a friend, अगर मेरे साथ एक दोस्त है, I won't speak to his heart. मैं उसका दिल तो कभी नहीं तोड़ूंगा। I will use words
and things to please him. हमेशा नरमी से बात करूंगा ताकि उसे मेरे अल्फाज पसंद आए। I will do things that may please him. हाँ, हमेशा इस तरह के अमाल में मैं मशगूल रहूंगा जो उसे पसंद आए। Thinking that if I do this thing, if I speak this word, if I'm harsh, that he may not like it. क्योंकि मैं सोचता हूं कि अगर मैं नरमी से पेश ना आऊं या उसके पसंदीदा अमाल में मैं मशगूल ना रहूं तो उसका दिल शायद टूट जाएगा। Yeah. So speaking things pleasing him. तो जो बातें उसके लिए पसंदीदा होती हैं वो बातें हम भी बात करें। Yeah. So also we must go to our Lord and speak what he pleases him. इसी तरीके से खुदा के पास हमें भी जाना है और जब जाते हैं तो उसके लिए पसंदीदा बातें जो हैं उन्हीं बातों का जिक्र करना है। Yeah, when we please him and the day will come, he will take us to be with him. जब हम खुदा को पसंद आते हैं तो एक दिन आएगा, वो दिन खुदा यीशुआ आएंगे, वो दिन जब खुदा यीशुआ आएंगे तो वो हमें ले जाएंगे। Yeah, Hebrew 11 verse 5. इब्रानियों की किताब 11 की 5। Yeah, by faith Enoch was translated that he should not see death, and it was not found because he had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. ईमान ही से खानोक को उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है। Yeah, he pleased God. वो खुदा को पसंद आया था। So our fellowship with the Lord must be so much that we must please him with all our deeds. तो हमारी रिफाकत भी खुदा से इस तरह जुड़कर रहनी चाहिए कि हमारे पूरे आमाल के साथ हम खुदा को पसंद आए। When we can please him? कब हम खुदा के सामने पसंदीदा बनेंगे? When we obey him, whatsoever he says. जो कुछ वो कहेगा अगर हम उसके फरमाबरदार होंगे तो हम खुदा के सामने पसंदीदा शख्स बनेंगे। Very important thing. बहुत अहम बात यह है। Many times we hear, but we don't do it. वो बात क्या है? बहुत सारी बार हम सुनते हैं लेकिन करते नहीं हैं। Yeah. James 1 verse 22. याकूब की किताब 1 की 22। Yeah. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. 1 की 22। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। Yeah. So before we take part in the Lord's table, तो खुदावंद की इस मेज में हाथ डालने से पहले we examine ourselves that are we the doers of the word. हम अपने आप को जरा जांच लेंगे कि क्या हम खुदा के कलाम पर अमल करने वाले रहें या ना रहें। Yeah, that's very important. ये बहुत अहम बात है। Then only we can please him. तभी हम खुदा के सामने पसंदीदा हो सकते हैं। We walk with him. तभी हम खुदा के साथ चल सकते हैं। And day will come and he will translate us like Enoch and we will be with him. और जब ऐसा होगा तो एक दिन आएगा और खुदा यीशु आएंगे और खानों की तरह हमें भी उठा कर ले जाएंगे। Yeah. Then if you want to become a friend of God, और आगे बढ़ेंगे, अगर हम खुदा के साथ दोस्ती कायम करना चाहते हैं submit yourselves therefore unto him, God. तब क्या करना चाहिए? क्या करना पड़ेगा? खुदा के सामने अपने आप को पस्त बनना पड़ेगा। Resist the devil, he will flee from you. और सातान को झिड़कना और वो आपसे दूर भाग जाएगा। Draw nigh unto God and he will draw nigh unto you. खुदा के करीब आना और खुदा आपके करीब आएगा। Yeah, verse chapter 4 verse 7 and 8. याकूब की किताब 4 की 7 और 8 आयतें। बस खुदा के ताबे हो जाओ और मुफ्तरी का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक आओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। Cleanse your hands, ye sinners. ऐ गुनहगारों अपने हाथों को साफ करो। Purify your hearts. और ऐ दो दिलों अपने दिलों को पाक करो। He says, ye sinners, double-minded. वो कहता है ऐ तुम लोग गुनहगार बन चुके हो, दो दिल वाले बन चुके। Yeah, how can God share things with us? We are double-minded. जब हम दो दिल वाले बन के रहते हैं तो खुदा अपने दिल की बातें हमसे क्यों बांट कर बोलेगा? Yeah, we cannot become a friend of God. तब हम खुदा के दोस्त नहीं बन सकते।
Yeah, one leg in this world, one is in for spiritual things. आपका एक पैर दुनिया में है और दूसरा पैर जो है रूहानी चीजों में है। We cannot do anything. हाँ, वो अगर ऐसा रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। Yeah, he says, यहाँ पे कहता है then 10वीं आयत, humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. खुदावंद के सामने फिरौतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। Yeah, humbling ourselves in the sight of the Lord. खुदा के सामने अपने आप को फिरौतनी करना। How much that the Lord was humbled and he gave himself for us, so also we must humble ourselves. Whatsoever he says, we ought to obey. जिस तरह खुदावंद यहोवा ने हमारे वास्ते अपने आप को हलीम बनाकर फिरौतनी दिखाई, हमें भी खुदावंद यहोवा के सामने फिरौतनी के साथ पेश आकर उनकी हर बात माननी है। God gave a testimony खुदावंद यहोवा ने एक गवाही दी थी। about Abraham. अब्राहम, खुदा ने अब्राहम के बारे में, अपने दोस्त अब्राहम के बारे में गवाही दी थी। What a blessed thing it is. ये कितनी ही बड़ी अजीम बात है ना। Yeah, Isaiah chapter 41 verse 8. एशिया की किताब 41 की 8, Isaiah 41 verse 8. चैप्टर 41 की वर्स 8। But thou, Israel, art my servant, Jacob, whom I have chosen, the seed of Abraham, my friend. बस तू ए इस्राएल मेरे बंदे, ए याकूब जिसको मैंने पसंद किया, जो मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल से है। God himself says, Abraham, I have chosen the seed of Abraham, my friend. खुदा कहता है अब्राहम को मैंने चुना और मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल हो तुम। Yeah, Israelites also acknowledged that Abraham is a friend of God. और इसराइलियों ने भी इस बात को उन्होंने भी जान ली थी कि अब्राहम खुदा का दोस्त है। Yeah, in Second Chronicle chapter 20 verse 7. दूसरा तवारीख की किताब 20 की 7। So here also, please read. है हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इसराइल के आगे से निकाल कर इसे अपने दोस्त अब्राहम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? Yeah, when the enemies came against war, against Jehoshaphat, he prayed to God like this. जब यहोशाफात के दुश्मन उसके सामने आए वार करते हुए, तब उसने ये दुआ खुदा से मांगी, Lord, you are the seed of Abraham, thy friend forever. ऐ खुदा, हम आपके दोस्त अब्राहम जो है उसकी नस्ल हैं। What a wonderful thing. ये बहुत अजीम बात है। Yeah, so testimony. गवाही, When we become the friend of God, it's a testimony. जब हम खुदा के दोस्त बनेंगे तो वो एक गवाही होती है। We often quote Brother Buxing हम बहुत सारी बार भाई बक्सिंग जी के बारे में बोलते रहते हैं ना, because he lived close with him. He was a friend of God. क्योंकि वो भी खुदा से बहुत करीब जीते थे, खुदा के दोस्त बनकर जीते थे, He received from God, खुदा से सब कुछ लिए थे gave to his people. और अपने लोगों को दिए थे। So also many men of God, इसी तरीके से बहुत सारे मर्दे खुदा हैं, yeah, they receive from God वो लोग खुदा से सीधे लेते हैं and satisfied the people. और लोगों को शेयर करते हैं। Demonstrated the power of God upon this earth. इस जमीन पर खुदा की कुदरत जो है उसे जाहिर करते हैं। When we become the friend of God, जब हम भी खुदा के दोस्त बनते हैं, God will use us for His glory. खुदा क्या करेगा, हमें भी उसके जलाल के वास्ते मुस्तमिल रखेगा। Before take part in the Lord's table, अब हम खुदा की इस मेज में हाथ डालने वाले हैं। let us examine ourselves. हम हमारी जिंदगियां एक बार परखेंगे। Whose friend I am? हम या मतलब मैं किसका दोस्त हूँ? Am I the friend of the Lord? क्या मैं खुदा का दोस्त हूँ? Can the Lord say He is my friend? क्या खुदा ऐसा कह सकता है कि ये बंदा जो है ये मेरा दोस्त है? It's very important. ये बहुत अहम बात होती है। We cannot say definitely we are the friend of the world. वी कैन नॉट से, If He cannot say that we are His friend, अगर खुदा ये नहीं कह सकता कि हम उसके दोस्त हैं, and we will become the friend of this world. तो यकीनन ये बात तो साफ है ना कि हम इस दुनिया के दोस्त बन गए। Friends of this world cannot become the friend of God. ये दुनिया के दोस्त जो होते हैं, दुनिया से दोस्ती रखने वाले जो होते हैं, वो खुदा के दोस्त बिल्कुल नहीं हो सकते। Yeah. So leave this friendship. तो इस दुनिया की दोस्ती छोड़ दें, Love not the world. दुनिया से मोहब्बत छोड़ दें, Don't love things in this world. मतलब दुनिया में जो चीजें हैं उनसे मोहब्बत ना रखें, Love the Lord who gave His life for us. और उस खुदा से मोहब्बत रखें जो हमारे पास अपनी जान सलीब पर दी है। There we must inculcate. और ये चाहत और आरजू हमारे अंदर रहनी चाहिए। I must go to Him. हमें
मुझे खुदा के पास जाना है, I must receive from him. मुझे खुदावन से कुछ पानी है। What a wonderful thing it is. ये कितनी अजीम बात होती ना। So 1 Corinthians chapter 11 verse 28. इसीलिए पहले कुरिन्थियों की किताब 11 की 28 में पढ़ते हैं, But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। Let us examine ourselves. हम अपने आप को जांचेंगे, I am the friend of God. क्या मैं खुदा का दोस्त हूँ? What shall I do to be the friend of God? खुदा का दोस्त बनने के लिए मुझे क्या करना Tell है? him, Lord, I love this world and things in this world. Forgive me. खुदा से कहना, ए खुदा, मैं इस दुनिया से मैं मोहब्बत रखता हूँ और इस दुनिया की चीजों पर मेरी नजर है, मेरी चाहत है, मुझे माफ करना। Lord, forgive me. खुदावंद मुझे माफ करना। Lord, help me that I may be your friend. खुदावंद मुझे मदद फरमाना कि मैं आपके दोस्त बन जाऊं। The life of Abraham be in my life. अब्राहम की जिंदगी जो है वो मुझ में रहे, The Lord will help us. तब खुदा हमें हमारी मदद करेगा। So let us examine ourselves and take part the Lord's तो table. इस तरीके से हम अपने आप को जांचेंगे और उसके बाद खुदा की इस मेज में हाथ डालेंगे।